Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Amir Mumtaz. I am associate professor in IMC BD 4, and today I'm recording my first lecture, which is about chapter number 4, and it's state of matter 1, gases. So obviously we'll discuss about the gaseous state in this very chapter. Then in chapter number 5 we'll discuss about liquids, and in chapter number 6 we'll discuss about solids. During these online sessions of your classes, we'll discuss these 3 chapters, inshallah. Today is the start of this chapter number 1, and as we will start studying about the gaseous state, it would be customary to understand that there are actually 4 states of matter, which I think you all as student of first year, you have studied about them in your previous classes. These 4 states are solids, liquids, gases and plasma. Although we will discuss first 3 states primarily in our syllabus. We first should know what is the basic difference between the first 3 states of matter. I'm talking about solid, liquid and gases. The basic difference between the solids, liquid and gases is the strength of their intermolecular forces. Those forces which are responsible for holding their particles together. These forces are strongest in solids, intermediate in liquids, and the weakest in case of gases. Now that is why we observe a particular shape and particular volume for solids, whereas as these forces are not that much stronger in liquids, so that is why they only have a particular or fixed volume. They always have a fixed volume, but they do not have a fixed shape. We all have observed that the liquid will acquire the shape of the container in which they are being kept. यानी लिक्विड्स की जो शेप होती है वो बन जाती है उस कंटेनर की जिसमें हम उन्हें रखते हैं. ये वो तमाम चीजें हैं जो आप लोग ऑलरेडी, जैसे कि मैंने पहले उसमें थोड़ी देर पहले कहा कि आप सब लोग ये चीजें पहले से पढ़ चुके हैं, बट जस्ट टू रिमाइंड एंड टू जस्ट कीप गोइंग, मैंने मुनासिब समझा कि हम इसकी बात कर लें. Whereas as well as the gases are concerned, as in gases the intermolecular forces are the weakest, so they neither have a particular or fixed shape nor they have a particular volume. यानी ना उनका शेप फिक्स होता है ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है. अच्छा, अब इसमें ऐसे है कि इस चैप्टर के अंदर वैसे तो इसका जो आगाज है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और कुछ इस तरह की चीजों से होता है, लेकिन वो चूंकि अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रहे, रिड्यूस सिलेबस के दौरान उनको जरा कट ऑफ कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो हमने जो शुरू करना है टॉपिक वो स्ट्रेट अवे हम लोग स्टार्ट करेंगे गैस लॉज के साथ. गैस लॉज, व्हाट आर दीज गैस लॉज? Gas laws are basically used to explain the physical behavior of the gases. And when I say the physical behavior of gases, तो उसका क्या मतलब है? दरअसल कोई भी गैस जो है उसका जब भी हम उसके साथ डील करेंगे तो उसमें कुछ प्रेशर होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होगी, इस तरह की कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके साथ हमने डील करना है. नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्वांटिटी है. इन तमाम चीजों को अगर हम आपस में रिलेट करके स्टडी करें तो उसके लिए ये गैस लॉज हमारी मदद करते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज समटाइम द आइडियल गैस लॉज. टू बिगिन विद, हम सबसे पहले जिसको स्टडी करेंगे ये है बॉयल्स लॉ. सो द फर्स्ट गैस लॉ इज एक्चुअली द बॉयल्स लॉ. Boyle's law was put forward by Robert Boyle in 1662, if I'm not wrong. 1662 में ये पहला जो लॉ है ये रॉबर्ट बॉयल ने प्रपोज किया था, और उसके साथ ही उसका एक असिस्टेंट भी था रॉबर्ट हुक्स. तो इन्होंने इसके ऊपर जो है वो काम किया है. अच्छा, अब ये लॉ जो है वो किस चीज के बारे में डील करता है? तो बेसिकली बॉयल्स लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप
between pressure and volume of the gases at constant temperature and fixed amount of the gas. When I say fixed amount of the gas, you can also call it as the fixed number of moles. According to this very law, if I go to the definition, the pressure of any particular given amount of a gas varies inversely with the volume. The pressure of any gas, given amount of the gas, varies inversely with the volume. मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर का रिलेशनशिप वॉल्यूम के साथ देखेंगे तो वॉल्यूम और प्रेशर आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, and vice versa obviously. But for that you have to keep the temperature constant and you should have a particular amount of the gas. When I say the particular amount of the gas in terms of moles, I'll say that the gas should have fixed number of moles. यानी अगर एक ही जैसे मोल्स रखे जाएं और एक ही जैसे उसका जो टेम्परेचर है वो रखा जाए, तो फिर अगर आप गैस का प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी बदलेगा, प्रेशर को बदलेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी बदलेगा। तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ को मैथमेटिकली अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें, ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, आई होप कि आप लोग उसको अपनी बुक से भी देख सकते हैं। मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो लिख देता हूं। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो मैथमेटिकली we can say that volume is proportional to the inverse of pressure. Volume is proportional to the inverse of pressure. I hope के ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैं कोई एक्चुअली वीडियोस का इतना माहिर नहीं हूं, बट आई थिंक कि कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा है। V is proportional to the inverse of the pressure. और लेकिन इसके लिए जो शर्त है वो भी आपने याद रखनी है। वो शर्त क्या थी, कंडीशन क्या है, कब ये दोनों इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स मींस N शुड बी केप्ट कांस्टेंट। इनको कांस्टेंट रखना है हमने, यानी इनको हमने चेंज नहीं करना अगर, तो फिर ये होगा। अच्छा, बहुत से बच्चों के ज़हन में फौरी तौर पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर इनको अगर हम चेंज कर दें तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को भी साथ चेंज करें तो फिर ये बिहेवियर कुछ और हो जाएगा। और ये बिहेवियर भी हम पढ़ते हैं, वो हम एक कंबाइन इफेक्ट की सूरत में पढ़ते हैं, जनरल गैस इक्वेशन के अंदर इसको देखेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग कि अगर हमने इन दोनों को ज्यादा जरा सिस्टमैटिकली स्टडी करना है तो उसके लिए फिर हम ये देख रहे होते हैं कि हम वॉल्यूम को और प्रेशर को आपस में रिलेट कर देते हैं और बाकी दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर देंगे। ये पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है सारे वैसे भी। अच्छा, अब यहां पर चूंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी है, एंड इफ आई हैव टू रिप्लेस द प्रोपोर्शनैलिटी विद इक्वालिटी, तो देन आई नीड अ कांस्टेंट। ओके, तो वो जिस तरह से आप लोग किया करते हो मैथमेटिक्स में कि v, अब अगर मैं इक्वालिटी लेके आता हूं, आई हैव टू use a constant or I have to multiply with some constant over here. So it is k. The constant is k to 1 over p. The constant is k. It is commonly known as a Boyle's constant. One thing should be kept in mind, that this Boyle's constant is only constant when temperature and number of moles are constant. Means if you change the temperature for the same gas, if you have same gas, but you change its temperature, then at a particular temperature, the value of k will be a particular, but if you change the temperature, the value of k will be changed. Similarly, if you change the number of moles or amount of the gas, then the value of constant will be changed for the same gas. So it is constant only if you have temperature and number of moles fixed. So one can also say that if you are being asked in an MCQ that upon which factors or upon which of the following, for example, the Boyle's laws constant depends, तो फिर उसके लिए आप लोगों को अगर ऑप्शन नीचे दिए जाते हैं, जैसे आपको कह दिया जाता है कि जी प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, तो
या कुछ और भी 7 ऑप्शन हो, तो इनमें से 2 मैंने जो चीजें बताई हैं वो सही हैं। जैसे टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स, तो इनमें से कोई एक आपको गिवन होगा। मैंने एग्जांपल लिखी नहीं है इसीलिए जानबूझ के, सिर्फ मैंने आपके जहन में एक वो चीज, एक आइडिया डालना था कि इसके कांस्टेंट के बारे में भी ध्यान रखिए कि ये कांस्टेंट फॉरएवर या यूनिवर्सल कांस्टेंट टाइप नहीं है। इसके लिए हमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो अब ये इक्वेशन हमारे सामने आ रही है, v इक्वल्स टू के इंटू 1/p। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो एक इसकी फॉर्म है, इसको अगर मैं लेट्स से इसको यहां पर हम छोड़ दें तो ये दरअसल बॉयल्स लॉ का एक पहला सिलसिला हमें नजर आ रहा है, लेकिन यहीं से हमें इसकी एक दूसरी फॉर्म मिलेगी। आई कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म दैट pv इक्वल्स टू k और pv इक्वल्स टू कांस्टेंट अगेन एट temperature and pressure constant. So T and N have to be constant. इनको हमने constant रखना है लाजमन, ठीक है। तो उस वक्त हम ये बात कर रहे होते हैं। तो if PV equals to constant, it gives you another definition, which I can say it is the second definition. The same thing can be said in another way. That is why I'm calling it as the second definition. And it says that, or it can be said as that the product of pressure and volume for the fixed amount of the gas will remain constant at constant temperature. ठीक है, यानी अगर आप प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट बनाएंगे और आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट उसकी फिक्स रखी हुई है, अमाउंट और नंबर ऑफ मोल्स में को मैं एक जैसा ले रहा हूं, ठीक है, और जो टेम्परेचर है उसको भी अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो ये हमेशा प्रोडक्ट इनका सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब इसका ये है कि फर्ज करें हमारे पास कोई गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 है, उस वक्त अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और अगर हम इसका प्रेशर चेंज कर देते हैं और इसका प्रेशर P2 कर दें तो इसका वॉल्यूम V2 होगा, लेकिन इस तरह से कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। मैं इसकी एग्जांपल के तौर पर जो है वो अगर आपको ये बात समझाने की कोशिश करूं तो वो शायद इस तरह से हो सकता है कि फर्ज करें कि अगर मेरे पास एक जगह पर जो प्रेशर था वो 3 था और उस वक्त अगर किसी गैस का जो वॉल्यूम था वो 5 यूनिट था, तो आप देख रहे हैं कि ये 15 के इसका आंसर आएगा। अगर मैं इसके प्रेशर को बढ़ा देता हूं, P2 को मैं बढ़ा देता हूं, कितना कर देता हूं मैं, इसको कर देता हूं 5 यूनिट, तो फिर इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 3 यूनिट, सच दैट द प्रोडक्ट विल रिमेन दी सेम, बट कंडीशन फिर वही है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरा ख्याल है कि अब ये लॉ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के जहन में आ जाना चाहिए कि इस लॉ के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी गैस के ऊपर, आप उसके गिवन वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? और इसी तरह से प्रेशर अगर आप कम करते हो तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बहुत से एप्लीकेशंस भी हैं, हम बहुत सी जगहों पर सबसे पहली एप्लीकेशन तो जाहिर है यही है कि हमें अगर कुछ कंडीशंस पर किसी एक कंडीशन पर प्रेशर वॉल्यूम पता है तो किसी भी दूसरी कंडीशन पर अगर हमें प्रेशर पता है तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमने वॉल्यूम पता हो तो हम प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। इससे रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपने वो अटेम्प्ट करने हैं। तो ये इसका पहला कह लीजिए कि मेरे पास हिस्सा है। अच्छा, अब इसी तरह से ये जो लॉ है, इस लॉ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस लॉ को हम फर्दर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो नेक्स्ट जो चीज मेरे ख्याल में हमें डिस्कस करनी चाहिए, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट होता है कि हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, कि इसको हम ग्राफ की मदद से कैसे शो कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो ग्राफ बनाया जाता है, पहले तो उसके बारे में ये कर लेते हैं कि इसका जो ग्राफ हम पढ़ रहे होते हैं, इस ग्राफ को हम आइसोथर्म कहते हैं। वो क्यों आइसोथर्म कहते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे जो है वो आप लोगों को शेयर करूंगा इंशाल्लाह, कि वो क्यों हम इसे इस तरह से कह रहे होते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आइसोथर्म जो है वो क्या होता है। अच्छा, अब अगर हम इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट करते हैं तो ऑब्वियसली दो हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से, एक प्रेशर है और दूसरा वॉल्यूम है। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर सिर्फ कहा, अभी नंबर ऑफ मोल्स मैंने नहीं बोला। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हैं, लेकिन चूंकि हम ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे होंगे तो हम लोग टेम्परेचर को देखेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी एक गैस की खास अमाउंट लोगे तो तभी आप उसका प्रेशर और वॉल्यूम जो है मेजर कर रहे होते हैं।
तो इस वजह से मैंने उसका इतना वो जिक्र नहीं किया। अच्छा, अब अगर हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ग्राफ जो है वो उसका किस तरह से बनेगा कि अगर आप प्रेशर जो है वो अलोंग, हम इस तरह से अगर ये ले लेते हैं, एक्सेस के नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, आपको पता ही है, लेकिन आमतौर पे चूंकि इसको हम एक्स एक्सेस कह देते हैं, इसको हम वाई एक्सेस कह देते हैं। बहरहाल सो लेट्स से अगर हम प्रेशर, ये जो है ये प्रेशर एक्सेस है और ये जो है इसको हम एज वॉल्यूम एक्सेस ले लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो चूंकि अगर लिया जा रहा है तो वॉल्यूम इज आल्सो इक्वल टू 1/d। तो आप अपनी बुक में देखेंगे कि आपको 1/d यानी 1/ डेंसिटी जो है वो भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो इससे इतना कंफ्यूज नहीं होना कि इसका क्या मतलब है। तो वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का बेसिकली ग्राफ है। अच्छा, अब ये जो ग्राफ हमें हासिल होगा वो किस तरह का, जाहिर है ग्राफ हमें ये बताएगा कि अगर आप वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर कम होना चाहिए, यानी एक दूसरे के इनवर्स होने चाहिए। तो जब हम इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे तो हमें जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का मिलना चाहिए, वो हमें इस तरह का एक हाइपरबोलिक कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइपरबोलिक कर्व। हाइपरबोलिक कर्व का मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये मैंने जरा थोड़ा सा ज्यादा इस तरह से करके बना दिया, एक्चुअली ये अब यहां पर बोर्ड की फैसिलिटी भी नहीं है जिसको हम यूज कर लिया करते हैं। बहरहाल दिस इज हाइपरबोलिक कर्व। हाइपरबोलिक कर्व का मतलब ये है कि उल्टा इस तरह से आपको कर्व मिलेगा। इसका मतलब दरअसल ये है कि ग्राफ में जो गैस है, अगर उसका प्रेशर जो है, फर्ज कर लीजिए कि अगर मैंने किसी जगह पर मैंने फर्ज करें एक प्रेशर P1 जो है वो यहां लिया, ये ओरिजिन है, तो ये प्रेशर अगर P1 है तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं यहां पर इसको ड्रॉ करता हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि ये इसका प्रेशर इस वक्त जो है इसका ये वाला होना चाहिए। अच्छा, अगर इस वक्त ये प्रेशर है तो अगर मैंने वॉल्यूम लेना है तो मैं इसी से इसका परपेंडिकुलर जो है अगर यहां पर ड्रॉ करता हूं तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा विच इज V1। और लेट्स से अगर मैं प्रेशर को रिड्यूस कर देता हूं, जैसे फर्ज करें मैं यहां पहुंच जाता हूं, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो P2 हो गया। अब अगर मैं इसके पैरेलल इसको लेके जाऊं तो ये मेरा इसका वो इसके साथ इसने टच किया। यहां से अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो वॉल्यूम मुझे मिलेगा V2। अगर आप गौर फरमाएं तो प्रेशर जो है वो जब मैंने कम कर दिया है P2 तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो इसलिए कि ये ग्राफ जो है वो हमें ये शेप दे रहा है। सो दिस इज हाइपरबोलिक कर्व। अच्छा, अब ये किसी खास टेम्परेचर पर बना होगा। फर्ज करें ये टेम्परेचर T1 है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो जाहिर है चूंकि जो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी तो ये ग्राफ भी बदल जाएगा। फिर ये ग्राफ किस तरह से आना चाहिए? फर्ज करें अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और बेसिकली वॉल्यूम के इंक्रीज होने से ग्राफ जो है थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर मजीद टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। जैसे ये T3 है और ये वाला अगर मैं इसको T2 कह दूं तो ये ज़हन में रहे कि मेरे पास T1 इज लेस देन T2 एंड T2 इज लेस देन T3। तो जितना ग्राफ जो है वो मैं वो करता, जिसको जरा थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था। तो जितना जो है वो ग्राफ जो है वो उसमें टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ओरिजिन से ये ग्राफ हमेशा दूर होता जाएगा। बस ये आपको जहन में समझ में होना चाहिए कि बेसिकली एक हाइपरबोलिक कर्व है। हाइपरबोला मतलब इस तरह से। एक आप लोगों ने पैराबोला पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, शायद आप लोगों ने, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैथ्स में शायद आप पढ़ते होंगे वो पैराबोलिक, या फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते होंगे, इट इज अ बिट लाइक दिस, ठीक है। तो समझे ये उसके तकरीबन ऑपोजिट सा है ये हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोलिक कर्व भी इसको कहते हैं। तो ये ग्राफ जो है ये हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, हाइपरबोलिक कर्व होता है। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है इसका एक नाम भी है। हम इस तरह के ग्राफ को आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथर्म। आइसोथर्म कहने की वजह क्या है इस ग्राफ को? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम और सिमिलर, ठीक है। और थर्म आप कह लीजिए टेम्परेचर या हीट को हम कहेंगे, तो मैं यहां टेम्परेचर कह देता हूं इसको, तो इसका मतलब है सेम टेम्परेचर। तो एज द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट constant temperature, that is why this particular graph is known as isotherm as well. So if I think you people are asked that what is isotherm, so it is the graph which gives us the relationship between pressure and volume at constant temperature, or which is plotted between pressure and volume at constant temperature. अच्छा, अब ये ग्राफ जो है वो इस तरह से हमें मिल रहा है। अब फर्ज कीजिए कि इसी ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन की सूरत में हासिल करना चाहें तो वो भी हम लोग इसको कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन की सूरत में अगर बनाना है तो फिर हमारा ये ग्राफ को जरा मैं एक और तरह से ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। तो अभी ये ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन की सूरत में। उस सूरत में हम ये करेंगे कि हम प्रेशर को प्लॉट करेंगे वर्सेस 1/v, यानी इनवर्स ऑफ v ले लें।
प्रेशर और 1/v ले लें, और 1/v का मतलब डेंसिटी भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम 1/v लेंगे तो अब जरा इसको बात को जरा थोड़ा सा समझिए कि व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर इट विल रिड्यूस वॉल्यूम, it will reduce volume, and when the volume is reduced, as volume in 1/v is actually 1/v is the reciprocal of volume, volume is present in denominator, यानी volume इसको डिवाइड कर रहा है, तो वॉल्यूम की वैल्यू जब बढ़ेगी, मैंने प्रेशर को कम किया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/v की वैल्यू भी कम हो जाएगी। दोबारा समझे बात को कि जब प्रेशर मैंने क्या किया, कम कर दिया, कम किया, तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, जाहिर है बॉयल्स लॉ के मुताबिक जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/v की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब मैं अगर प्रेशर और 1/v का रिलेशनशिप देखूं तो क्या बना कि अगर प्रेशर कम हो रहा है तो 1/v भी कम हो रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, लिसन इट केयरफुली, इफ आई इंक्रीज प्रेशर देन इट विल डिक्रीज द वॉल्यूम, व्हेन द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड हियर the value of 1/v, the inverse of 1/v gonna increase, ठीक है। वो 1/v का जो इनवर्स है, मैंने शायद पहले रेसिप्रोकल कहा था, वो मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, पर इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ v जो है वो बढ़ जाएगा, यानी 1/v की वैल्यू बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, ठीक है, प्रेशर बढ़ाया आपने, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ तो 1/v की वैल्यू बढ़ गई, तो प्रेशर बढ़ा तो 1/v भी बढ़ा, यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो 1/v बढ़ेगा, अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो 1/v की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब इन दोनों का जो रिलेशनशिप बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है इन दोनों इनका जो रिलेशनशिप बन रहा है वो दरअसल हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो कि ओरिजिन के काफी करीब से हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल ओरिजिन से इसको शुरू नहीं करते, तकरीबन फर्ज कीजिए कि हम लोग इसको यहां से शुरू कर लेते हैं। सो इट इज अ बिट लाइक दिस, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अच्छा, ये भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तो क्या हम इसे आइसोथर्म करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये भी आइसोथर्म है। ये आइसोथर्म जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का था, और ये आइसोथर्म प्रेशर और 1/v का है, याद रखना है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये फर्ज करें एक टेम्परेचर है, फर्ज करें टेम्परेचर T1 है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक नया इसमें हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर यहां भी हमने चेंज किए थे ना, अगर हम यहां भी टेम्परेचर चेंज करते हैं, यानी अगर मैं इसे T1 को इंक्रीज कर देता हूं, एक नया टेम्परेचर ले लेता हूं, तो फिर ग्राफ किस तरह का आएगा? तो ग्राफ आएगा तो स्ट्रेट लाइन ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और 1/v या इनवर्स ऑफ v का जो ग्राफ है वो आना तो स्ट्रेट लाइन है, बट वो स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सिस की तरफ ज्यादा आएगी या 1/v की तरफ ज्यादा आएगी? तो देखें, जब आप बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, तो उससे क्या होगा कि वो जो ग्राफ है वो थोड़ा टिल्ट कर जाएगा, थोड़ा सा चला जाएगा टूवर्ड्स प्रेशर एक्सिस, 1/v से दूर चला जाएगा, ठीक है, इस एक्सिस से दूर हट जाएगा, तो वो यहां पर आ जाएगा। एक्चुअली ये ग्राफ्स आप लोग समझते का थोड़ा सा तरीका भी आप सबको ये याद ही होगा कि आप लोग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को जब कोऑर्डिनेट्स वगैरह पढ़ रहे होते थे, तो या चले मैं आसान जुबान में इसको इस तरह से करके देख लेता हूं कि जितना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रेशर की वैल्यू जो है मैक्सिमम कहां पर नजर आएगी, तो इस जगह पर नजर आएगी जो इसका एक्सेस है, और मिनिमम वैल्यू कहां नजर आएगी, तो मिनिमम वैल्यू प्रेशर की इस जगह पर है, ठीक है। इसका मतलब जूं जूं हम इस तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, जूं जूं इधर आएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर 1/v की बात करें तो वॉल्यूम और 1/v को थोड़ा सा आपस में आप रिलेट करके देखें, ठीक है। यहां 1/v मैक्सिमम होगा, यहां 1/v क्या होगा, मैक्सिमम, और यहां 1/v क्या होगा, मिनिमम होगा। 1/v की बात करूं वो मिनिमम होगा। इसका मतलब है जूं जूं 1/v की वैल्यू कम होती जाएगी तो हम इस तरफ दूर हटते जाएंगे, सही है। अच्छा, अब आप टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर जितना कम होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा, ये वैसे चार्ल्स लॉ है, हमने आगे पढ़ना है, लेकिन बहरहाल इसका रिलेशनशिप आपने पहले भी थोड़ा सा सुना हुआ है। हम जितना टेम्परेचर को देखते हैं कि वो कम होता है तो वॉल्यूम जो है वो उतना ज्यादा होता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम, सॉरी मैंने ज्यादा कह दिया शायद, टेम्परेचर जितना कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर जितना कम होगा वॉल्यूम भी उतना कम होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, टेम्परेचर कम वॉल्यूम कम। अच्छा, अब अगर आप 1/v की बात करेंगे तो वो उलट हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा 1/v कम, ठीक है।
टेम्परेचर ज्यादा, 1/V की वैल्यू कम। सही हो गया। और इसी तरह से अगर टेम्परेचर कम होगा तो 1/V की वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा, अब ये टेम्परेचर T1 T2 से कम है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि T2 ज्यादा है? इसलिए कि 1/V की वैल्यू उसमें कम होगी, क्योंकि ये 1/V के ग्राफ उसके एक्सेस से दूर होता जा रहा है। तो 1/V की जो वैल्यू है, 1/V की वैल्यू यहां T2 में कम है। सही है, T2 में कम है, 1/V की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया यहां पर, तो 1/V की वैल्यू जो है वो कम हो गई, इसलिए ग्राफ इधर दूर हो गया यहां से और प्रेशर एक्सेस के करीब हो गया। फर्ज कीजिए हम लोग एक और ग्राफ बना लेते हैं जो कि टेम्परेचर T3 है, तो मेरे ख्याल में T3 अब हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि उससे भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब है T1 इज लेस देन T2 एंड इट इज लेस देन T3। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से इसमें जब आप ग्राफ्स को देख लेते हो, तो मैंने कोशिश की है कि ग्राफ की आपको थोड़ी समझ आ रही है। कई दफा ऐसे हो जाता है कि ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा उल्टा करके भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज कि कई दफा ऐसे हो कि अगर आपको ये ग्राफ इस तरह से दे दिया जाए, वैसे आमतौर पे इस तरह होता नहीं है, लेकिन चूंकि आमतौर पे हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का भी ख्याल कर रहे होते हैं एक्सेस का। लेकिन बहरहाल अगर फर्ज करें ये 1/V मैं यहां कर दूं और प्रेशर को यहां कर दूं, यानी आप अगर समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि मैं अगर इसी ग्राफ को इस तरह से बना रहा होता, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नजर आ रहा है। अगर प्रेशर मैंने यहां लिया हुआ है और ये मैंने 1/V का एक्सेस लिया हुआ है, ठीक है। और अब अगर इसी तरह से मेरे पास ये T3 है, ये ग्राफ जो है वो मेरा बना T2 का, और ये वाला ग्राफ जो है ये हमने बनाया T1 का। ठीक है, तो अब कौन सा टेम्परेचर जो है वो आप कहेंगे ज्यादा है या कम है? तो अब ये उल्टा हो गया बिल्कुल। ठीक है, अभी मैंने इसके लिहाज से अगर आप देखें तो अब ये T3 जो है इसका 1/V की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। 1/V की वैल्यू चूंकि इसमें सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसमें V की वैल्यू जो है वो सबसे कम होगी। और अगर V की वैल्यू कम है तो उसका मतलब टेम्परेचर की वैल्यू भी कम है, तो उसका मतलब T3 की वैल्यू यहां सबसे कम है। तो इस ग्राफ के लिए T1 इज ग्रेटर देन T2 विच इज ग्रेटर देन T3। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये इसके बारे में पता चल गया होगा। मजीद जो भी क्वेरीज होंगी, ये मैंने अभी चूंकि ये बनाया है, तो फिर हमारी जब क्लास होगी तो उसके अंदर आप लोग इस लेक्चर को पहले सुन लेंगे, समझ लेंगे। मैं शेयर करूंगा इस लेक्चर को। उसके बाद फिर आप लोग मेरे से उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस भी करें इंशाल्लाह। आई विल होप के हम इसमें बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह सिलसिला, और फिर जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड्स होंगी तो उसके मुताबिक देखते जाएंगे। अच्छा, अगर अब आप लोग इसको चूंकि आप लोगों ने रीड करना है, तो आप फर्दर इसमें देखेंगे कि आपके इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। जैसे आपको इसमें जो न्यूमेरिकल सबसे पहले मिल रहा होगा, वो मेरे ख्याल में आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल है 4.4। अब ये 4.4 एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है, उसको देखना है। और इट गोज दैट एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.300 dm cube at a pressure of 1.8 into 10⁵ pascals. What is the volume of the gas maintained at the same temperature if the pressure is reduced to 1.5 into 10⁵ pascals? अब इसमें दरअसल ये किया जा रहा है कि आपको वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है अगर प्रेशर कोई खास प्रेशर से चेंज करके किसी दूसरे प्रेशर में कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें आपको जब आप इसके सोल्यूशन के लिए जाएंगे तो आपको ये देखेंगे कि आप लोग अगर इसका प्रेशर जो है वो बताया जा रहा है कि इफ द प्रेशर इज 1.8 into 10⁵ पास्कल्स, यानी प्रेशर अगर मैं इसको P1 कहूं, तो हमें पहले प्रेशर इनिशियल में दिया हुआ है, इसको हमने P1 कह दिया, तो इट इज 1.8 into 10⁵ पास्कल। पास्कल इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फॉर वॉल्यूम, for pressure. At this very pressure, the volume given is V1, which is given to us as 0.300 dm cube. Now, what we are being asked to do, that they are saying that if the pressure is changed to P2, the new pressure is 1.15 into 10⁵ pascals. 10⁵ pascals. Then what would be the new volume? नया वॉल्यूम कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है,
अब सिंपली हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद हम अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ जो है उसको थोड़ा सा देखेंगे। मैंने पीछे शायद जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आई एम नॉट श्योर कि मैंने आपके साथ ये चीज डिस्कस की थी कि नहीं की थी। हाँ, शायद मैंने आपको बताया था। अगर आप ये यहां से देख रहे हो तो इसमें हमने पढ़ा था एक सेकंड डेफिनेशन दैट P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो हम यही चीज जो है वो यहां यूज कर लेते हैं और उसके मुताबिक जो है वो हम लोग इसको लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं टू बॉयल्स लॉ, बट जब तक हम किसी चीज को सीखे नहीं उस वक्त तक वो चीज सिंपल होती नहीं है। जाहिर है हमने मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं कि ये शायद फिजिक्स में आपने 9th-10th में भी किए होंगे ये P1 V1 equals to P2 V2। Now amongst these four parameters we have to determine only one, which is V2। So if I have to determine V2 then it should be P1 V1 over P2। And now I'll just put the values and I'll get the result। मतलब अगर आप इसमें अब values वगैरह सिंपली पुट कर दीजिए। So what is P1? P1 given to us is 1.8 into 10 raised to power 5 pascals। What is the value of V1? It is 0.300 dm cube। And now I'll divide it by 1.15, which is the P2 into 10 raised to power, into 10 raised to power 5 pascals। Okay, Pascal, can start with Pascal. I'll get the result in decimeter cube by using simple calculation or with the help of your calculator. I'll get the answer as about 0.469। I'll recommend you people to do this calculation by your own self, and I'll also give you some numericals to solve during your Zoom class. And this is all about Boyle's law. In this lecture, we'll I think we have discussed about the Boyle's law. I have tried to discuss each and every aspect of the Boyle's law. There are two definitions of Boyle's law. Then we studied its mathematical form. Then we also studied its graphical representation. Graphical representation is very important as far as the examination point of view is concerned. And there are certain other things which we had discussed. I think you'll learn a bit of this lecture. Again, it is my first attempt. I think it will be beneficiary for all the students। आप सब लोग इसको देखिए, मैं शेयर करूंगा इसको और उसके बाद फिर इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी आगे करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो इसके बाद नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा वो चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ वगैरह के बारे में होगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इट इज ऑल फॉर today's lecture, and that's all। Thank you very much for listening, and Allah Hafiz, take care।